Ready? Oh yeah, we have some energy. A little more. Hi, pitch wala. Hello. 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 So we also used to sit over there in the crowd. It feels a little bit different to sit because you have to feel that feeling sometimes. It feels very good and different, of course. Yeah. Yeah. So let me first introduce myself. Otherwise, when people will say, "Ladkiyan kitchen baat kar rahi hai." So I was among the first batch of the school, the 2017 batch. And after that, I took maths as a subject. I pursued PCM, and then I did my 11th and 12th in that. After that, I was among the top 2% of the students who gave that exam. And after that, I got admitted into my engineering college, which is Vishwakarma Institute of Technology, wherein I recently passed out in past 2 months with the degree of BTech in Computer Engineering. And also, after that, the sir gave the introduction. Also, I got admitted into the VMware with certain amount of package. So that's all. That's about my introduction. So this is all, but now I want to get to track about how you should be proceeding into it, okay? So we got to hear that you people are not respecting your teachers. So that's a very bad thing. You should not be doing that. You know, right? Gurur Brahma, Gurur Vishnu. आता है? बोलो. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara. क्या है इसका मतलब? Gurur Brahma, ब्रह्मा विष्णु महेश पता है? ये सब तीनों गुरु ही है. तुम गुरु ही परब्रह्म है. तुम उसको ही कैसे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो? That is not a good thing at all. You always have to respect your teachers. What all we are getting, it's because of the knowledge. We are getting that knowledge from our teachers. And if you are not respecting them, sorry, you are not going to get anything in your life. And everything is about your mentality. If your mentality is not right, at the end of the day, you will keep crying, you will not get anything. Everything is about your mentality, all about what's in here. Okay? You get it? So this was about the teachers. One thing which I really wanted to point out, please respect your teachers. Don't pass on cheats and everything. And please don't touch social media. That's not at all for you. It's for people whose age is more than 18. Are you 18? Is anyone of you 18 over here? No, right? You passed out of 10th standard when you are 16. You are not allowed to use Instagram till you are 18. Social media is after you can use after 18. They might have the age limit of 12 or 14 something, but you should be using it after 18 when you have strong legs in your career. Are you getting what I'm saying? Yes. Okay, all this aside, now I please expect from all of you that you should be please respecting your teachers. Don't pass comments on them. They are your teachers. Okay? They are like God. इसका मीनिंग तो तुम लोग ले नहीं रहे हो. What is this then? ठीक है? हंसो मत. This is really a very bad behavior. You should be respecting your teachers. मेरे को तो हर रोज डांट पड़ती है. मेरे को तो हर जगह डांट पड़ती है. मेरे घर में भी डांट पड़ती है. कितने देर तक सोना है करके. वो बोल रहे हैं आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना. ठीक है? This was about your values. Okay, now we'll be moving towards your career path. How you will be taking. कर रही हो कि आप लोग सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हो, right? या सो वी एक्सपेक्ट दैट कि आप लोग सारे सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो. बट 9-10 में क्या हो जाता है कि बच्चे बोलते हैं कि मेरे को मैथ्स नहीं करना है, मेरे को साइंस करना है, या फिर ये नहीं करना है, आर्ट्स करना है वगैरह. तो ये 9-10 स्टैंडर्ड से चालू हो जाता है. ठीक है? मैंने कल 10th स्टैंडर्ड के क्लास में भी बोला, आप अगर बायो भी परसीव कर रहे हो तो आपको मैथ्स लगेगा. ठीक है? क्योंकि आपको बायो अगर आप परसीव कर रहे हो तो आपको साइड बाय साइड फिजिक्स भी आपके झोले में आता है. केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, राइट? अगर आप मैथ्स नहीं कर रहे हो, आपको फिजिक्स नहीं आएगा, आपका फिजिक्स खराब हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके? दैट ऑल गोज साइड बाय साइड. सो आपको सबसे पहली चीज क्या फोकस करनी है? यू हैव टू डेवलप योर सॉफ्ट स्किल्स. यू शुड लर्न टू स्पीक, यू शुड लर्न टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. आपको एक एडवांटेज है कि आप लोग सीबीएसई स्कूल में हो, आप लोग इंग्लिश सीख रहे हो, आपका आगे का पूरा एजुकेशन इंग्लिश में है. ठीक है? आपको जो भी अगर कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में आने वाला है. वो भी समझने के लिए आपको आपका इंग्लिश होना जरूरी है. प्रॉब्लम्स ऐसे घुमा के आते हैं, ऐसा नहीं आता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट.
ऐसा सीधा सीधा नहीं आता है, ऐसे घुमा के ट्विस्ट होके आता है. दैट इज व्हाट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर. तो आपको पहले क्या करना है, इंग्लिश अच्छे से करनी है. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश टू ईच अदर. अभी आपका हो सकता है कि आप अभी ट्राई कर रहे हो तो ग्रामर थोड़ी है कि सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करनी है, इंग्लिश अच्छा करना है, बातचीत अपनी अच्छे से करनी है. मतलब ऐसे जो आप बोल रहे हो वो समझ में आना चाहिए, और जो आप बोल रहे हो उसमें पॉइंट होना चाहिए. ऐसा ही नहीं कि आप कुछ बोल रहे हो एंड दैट हैज नो सेंस. What you are speaking should make sense at the end of the day, because if you are talking something then that should make sense. अगर आपका कुछ है नहीं उसका meaning, then no one will ever listen to you. Okay? You are getting it? So the one thing was soft skills. You should be speaking confidently. Confidence कब आएगा? जब आप अच्छे से रहोगे, आप अच्छे से बात करोगे, you are doing whatever is needed. अगर आप आज हार्ड वर्क कर रहे हो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के लिए, राइट? या फिर कोई भी अगर किसी सर ने क्वेश्चन पूछा तो आंसर करने के लिए कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने उसके लिए तैयारी की है. ठीक है? टेक द कॉन्फिडेंस फ्रॉम द राइट प्लेस. तैयारी करके, प्रिपेयरिंग, हार्ड वर्क. ओके? किसी और जगह से कॉन्फिडेंस मत लो. बाहर का कॉन्फिडेंस बहुत फेक है. आई नो आप जो चीज रेफर कर रहे हो ना, मेरे को वो सब चीज पता है. मैं भी इंस्टाग्राम यूज करती हूँ. आई नो व्हाट यू ऑल आर सीइंग. ओके? ये डिप्रेशन वगैरह के जो वर्ड्स है ना, ये अभी अभी आए हैं. मेरे को 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने कल बोला कि ऐसे 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 करने के बाद ऐसे डिप्रेशन आ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे डिप्रेशन आ रहा है. डिप्रेशन वो नहीं होता है बच्चों. डिप्रेशन क्या होता है पता है? आप जो बोल रहे हो वो ऐसे बोलो कि ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे को ऐसे बुरा लग रहा है. डिप्रेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. प्लीज डोंट यूज इंस्टाग्राम. आई सीरियसली रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट यूज इंस्टाग्राम, Facebook, Snapchat. It's not for your people. WhatsApp is for your parents. Getting it? And please don't hide anything from your parents. Your parents are your best friends. They are going to give you the opportunities. I'm here because my parents allowed me to study, to go away from this village and study far from here. Your parents, respectful bond. You are getting it? मैं यहाँ पे आप लोगों की परेड नहीं लगाने आई हूँ, मैं बस आपको बता रही हूँ. ठीक है? आप ऐसा सीरियस मुंह मत बनाओ. ठीक है? तो एक चीज कि आपको अपना इंग्लिश अच्छा करना है ताकि आपको बाकी सारे सब्जेक्ट में समझ में आ जाए. ठीक है? सेकंड प्रायोरिटी आपका क्या होना चाहिए बताओ? मैंने कल 10th स्टैंडर्ड की क्लास में भी बताया. क्या होना चाहिए? है कोई 10th स्टैंडर्ड गर्ल्स? ये दे रही है ना? क्या बताया? सेकंड क्या बताया? गया ऐसा ऐसे आगे ऐसा नहीं, क्या बताया सेकंड? सबसे पहले पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और डीमोटिवेटेड ये सब वर्ड से दूर रह के स्टडी पे फोकस करना चाहिए. हाँ, स्टडी पे फोकस करना चाहिए. ठीक है? एवरीथिंग इज अबाउट हार्ड वर्क. ठीक है? और नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको इंग्लिश हो गया. अपना फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा? इंग्लिश, क्योंकि अपन CBSE स्कूल से है और यही अपने को बाकी सारे इससे डिफरेंशिएट करेगा आगे जाके. आगे जाके आपको पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 12, 13, 15 लाख लोग अप्लाई करते हैं. अपने को उसमें से डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो फैक्टर होना चाहिए, कुछ तो स्किल होना चाहिए अपने में उसके अंदर. ठीक है? वो 12, 13, 15 लाख में सिर्फ 20-25 हज़ार सीट होती है. अगर आप ये सब ऐसे कैरी करोगे ये लाइफस्टाइल, उससे फिर वो क्रैक नहीं होगा. अभी देखो ना, आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि 15 लाख बच्चे हैं, उसमें सीट सिर्फ 25,000 है. कैसे होगा? नहीं ना. तो आपको सबसे पहले अभी से आपको ऐसे तैयार होना चाहिए. मतलब आप ऐसे मत करो कि आप अभी से कोचिंग क्लासेस वगैरह लगाओ. आपका बेसिस आपका 8, 9, 10 का सिलेबस है. आप अभी जिसमें हो वही आप ठीक से करो, वो वही आपको आगे काम आएगा. 11, 12 का बेस क्या है? 8, 9, 10. आप 8, 9, 10 अच्छे से करोगे मतलब आप उसके लिए तैयार हो. ठीक है? समझा? अभी अपना एक इंग्लिश हो गया टॉप प्रायोरिटी, अपने को इंग्लिश रखना है. सेकंड टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगा? मैथ्स. क्या रहेगा? कौन कौन मैथ्स से भागता है? अगर आप मैथ्स नहीं करोगे आपका बायो खराब हो जाएगा. बायो मतलब साइंस, क्योंकि साइंस में क्या आता है? क्या बोला मैंने? फिजिक्स के लिए क्या लगता है? मैथ्स. तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा. अगर आप मैथ्स जितना अच्छा करोगे आपका लाइफस्टाइल उतना अच्छा होगा, आपका ब्रेन उतना अच्छा हेल्दी रहेगा. आप उस तरीके से ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके में सोच सकोगे. ठीक है? समझ रहे? आपका ब्रेन डेवलप होगा,
आप अपने डे टू डे ऐसे बात करते हुए भी आप नंबर्स के थ्रू बात करोगे, मतलब कि लाइक क्वांटिटेटिव में, ऐसे लाइक ऐसे हवा में बातें नहीं, ऐसे इतना नंबर है तो इतना हो सकता है, ऐसे आइडिया तो होना चाहिए किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट लीव मैथ्स। अपने टॉप 2 प्रायोरिटीज है, पहला है इंग्लिश और सेकंड है मैथ्स। मैथ्स बिल्कुल भी मत छोड़ो, ठीक है, समझा? मैथ्स करेंगे सब लोग आज से? पक्का? मैथ्स कर। नीट का काफी बच्चों का उसी वजह से नहीं होता है क्योंकि फिजिक्स उनका छूट रहा है, फिजिक्स भी छूट रहा है क्योंकि मैथ्स आता नहीं है, समझा? वो करना है, ठीक है। और कुछ नहीं, एंड फिर उसके बाद फिर बाकी के सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 बोला है तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट, उसके बाद फिर बाकी के सब्जेक्ट। अभी इंग्लिश सीखा तो साइंस का बुक पढ़ा तो साइंस का बुक समझ जाएगा ना, मीनिंग समझ जाएगा जो सेंटेंसेस लिखे हैं उसके, ठीक है। और प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर्स। Apart from NEET, there are plenty of other ones. या दैट टू। सिर्फ नीट और जे ये नहीं है, अभी ऐसे रेस में ऐसे ही चल रहा है नीट जे, क्योंकि हर कोई इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। कितनी सारी फील्ड्स है, लॉयर है, क्या क्या कुछ नहीं है। शेफ बन सकते हो तुम, शेफ में तो कितना सारा पैसा है, खाना भी तो बहुत है। तुम लोग को हंसी वगैरह नहीं आता है या फिर मैं लेम जोक्स मार रही हूँ? काफी कुछ है। आप मेरे को बताओ, कोई बताओ अलग अलग और करो, और कौन से प्रोफेशन से बताओ। मेरे को बनना था पायलट, मेरे को काफी कुछ बनना था, पता है। मेरे को पायलट बनना था, मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, मेरे को आर्टिस्ट बनना था, मेरे को पेंटर पेंटर तो आर्टिस्ट में ही आ गया, और काफी कुछ था, ऐसे काफी सारी चीजें थी। टीचर बनना था मेरे को क्या कुछ नहीं करना था, ठीक है। पायलट और मैनेजमेंट, हाँ मैनेजमेंट और सेल्स और इंटीरियर डिजाइनर, हाँ इंटीरियर डिजाइनर। और ये अभी आपके लिए अपन सारे प्रोफेशन पार्ट से एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन है आपको बता रहे हैं। सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस नहीं है, अभी आपको मैनेजमेंट, सेल्स, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, लॉयर और काफी कुछ। और क्या है उस साइड से आवाज आया मेरे को कुछ, ऐसे शांत वाला क्राउड नहीं पसंद मेरे को। Was there with me with my in my whole journey, प्रिया। हम लोग साथ में थे 11th 12th में। ऐसा नहीं कि हम लोग झगड़े नहीं वगैरह नहीं, खूब बहुत झगड़ा हुआ हमारा। हमने तो बीच में बात करना भी बंद कर दिया था। होता रहता है, रास्ता सीधा थोड़ी ना होता है। तुम इधर से धारूर जा रहे हो, सीधा रास्ता होता है क्या? ऊपर नीचे होता है ना, है कि नहीं? फ्रेंड अच्छा रखो, हंसो मत, हंसने की बात नहीं है। दिस इज योर लाइफ, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू फेस अहेड, ठीक है। और कुछ आगे? ओके, थैंक यू। आपको कुछ पूछना है या फिर बाद में लेते क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन तीनों को बाद में एक बार क्वेश्चन सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू। आई होप मैंने आपको ज्यादा